آج کا خدا کا کلام دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت سے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے۔ دوسری سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت سے ہم 11 آیت تک پڑھیں گے۔ جو درخواست ہے کہ میں خدا کے ساتھ لے کر ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ چار باب اور اس کی پہلا سلاطین اس کا 4 باب اس کی 8 آیت۔ اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیتے اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہی ٹھہرے گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ہاللویا 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 ہاللویا۔ آئے ہم خدا ان کا زندہ کلام جو ابھی پڑھا گیا ہے، ہم اس پر بات کریں گے کہ یہاں پر جو خدا کے بندہ کی اور ایک خدا کی بیٹی کی یہاں پر ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جتنا ہم خدا سے پیار کریں گے اتنا ہی خدا ہم سے پیار کرے گا۔ ہاللویا۔ ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں کلام مقدس میں جو بھی پڑھا گیا ہے لکھا، اور ایک روز ایسا ہوا کہ الیشا شونیم کو گیا، وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا۔ پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا اور روٹی کھانے کے لیے وہاں چلا جاتا تھا، سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے۔ ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں۔ پھر جب بھی کبھی وہ پاس آئے تو وہ یہ وہیں ٹھہرے گا۔ ہاللویا۔ خدا کے پاک کلام پر خدا برکت بخشے۔ آمین۔ یہاں پر ہم کلام مقدس میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ خداوند کا بندہ الیشا، آپ کو پتا ہے کہ خدا نے کتنی اس کو برکت دی ہے، اور وہاں پر جب وہ گیا ہے ایک شنیم شہر کو، وہاں ایک عورت اس کو ملی۔ اس کے پاس جب وہ گیا تو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ عورت خدا کے ساتھ چلتی تھی، اور چلتی تھی تو اس نے خدا کے خادم کو، خدا کے بندہ کو پہچان لیا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ یہ مرد خدا ہے۔ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ مرد خدا ہے، اور اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی فکر کی اس نے، کہ وہ کہتی ہے کہ جب بھی آتا ہے تو ہماری طرف آتا ہے تو ہم اس کے لیے کیوں نہ ایک کوٹری بنا دیں۔ اور جب اس نے ایک اپنے شوہر کو کہہ کر اس کی فکر کی اور کوٹری بنائی، اور پھر کوٹری میں پھر کیا کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اس میں اب کیا کر ایک پلنگ لگا دے، اور آپ نے سنا ہے ابھی یہاں پر کہ ایک پلنگ لگا دے اور اس سے میز رکھ دے، ایسے کر ساری چیزیں جو ہے کمرے میں اس نے موجود کی، یہاں تک کہ شمعدان بھی رکھ دے وہاں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ خدا کے پہلے جو خدا میں گزر چکے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ایک دوسرے سے، خدا کے لوگوں سے کتنا پیار کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر رشتے داری یہ وہ سب کچھ
यहाँ पर सारा पढ़ा गया है, आप सब ने सुना है कि वो उसने एक खुदा के बंदे की कितनी फिक्र की, और वो बहुत दौलतमंद औरत थी। और जब उसने फिक्र की तो आगे ये हवाला अगर पढ़ना हो तो घर जाके पढ़ सकते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं कि उसने फिक्र की तो खुदा के बंदा लीशा ने अपने शागिर्द से कहा कि इसे पूछ कि ये क्यों मेरी मतलब इतनी फिक्र कर रही है। उसने शायद सोचा कि ये मेरी सल्तनत लेने के चक्कर में या मुझसे कुछ लेने के चक्कर में या क्या है। खुदा के बंदे ने ऐसे कहा अपने शागिर्द से, तो उसके शागिर्द ने क्या जवाब दिया कि खुदा के बंदे वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन एक फर्जंद औलाद नहीं है, कि उसके पास ये औलाद नहीं है, बाकी दौलत हर चीज उसके पास है। हम देखते हैं कि जब खुदा के बंदे की खुदा की बेटी ने फिक्र की तो क्या हुआ उसके साथ। आगे बहुत खूबसूरत बातें मैं बताऊंगी कि जब उसने ऐसा किया तो खुदा के बंदे ने उसको फिर अपने शागिर्द को कहा कि फिर इसको जिसकी जरूरत है उसको दे। उसने खुदा के आगे दुआ की और उस खुदा की बंदी को कहता है कि मैं जब दोबारा आऊंगा मौसम बहार में तो तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम खुदा की फिक्र करते हैं तो खुदा भी हमारी करता है। उसने खुदा के बंदे की फिक्र की और खुदा ने उसकी की, अपने बंदे के वसीला से उसकी फिक्र की कि इसको इस चीज की जरूरत है। आज तक तो हम कोई खुदा का खादम आ जाए तो कहते हैं आज दे कहा ही कोई, ऐसा भी होता है। बच्चों को कह रहा है कि वो घर नहीं है। तो जब हम अपने खुदा के खादमों की खिदमत करेंगे तो हम समझ लें खुदा की तरफ। खुदा खुश होता है, कहता जो मेरे बंदे को अजीज रखता है वो मुझे रखता है, और जो मेरे बंदे को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इतना खुदा अपने बंदे को ये देता है इज्जत। लेकिन आज हम देखते हैं कि खुदा के बंदे आ जाए तो जो हकीर नचीज बर्तन होगा उसमें लोग कई बार पानी देते हैं। कई ऐसे बर्तनों को निकाल ख्याल उस नवे जोड़े में रहता वो क्या मेहमानों के लिए, तो वो मेहमान जो सबसे बड़ा आता है उसकी फिक्र नहीं है। हम अगर खुदा से कुछ लेना चाहते हैं तो हम क्या करें कि खुदा के बंदों की इज्जत करें। हालेलुया। खुदा के बंदे को चाहें कि जिसने खाना खाना है हम इसके लिए खाना तैयार करें, हम इसके लिए ये करें, हम इसके लिए वो करें। जैसे हमारी अपनी जरूरतें होती हैं हम खुदा के लोगों के लिए भी ऐसे करें। जब ऐसा करेंगे तो खुदा की बरकतें देखो आपके साथ कैसे आए। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ मौत होती है, जहाँ काल होता है, वहाँ खुदा का बंदा जाता है तो उनको क्या मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हालेलुया। जहाँ पर एक मटकी में कहती है कि मुट्ठी आटा है और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल है, तो वहाँ पर जब खुदा का बंदा गया तो उसने कहा पका के मुझे खिला दे, सब कुछ तेरा। हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे को दे दूं, मैं खा लूं, मैं क्यों उसको दूं। लेकिन जब उसने खुदा के बंदे की फिक्र की तो खुदा के बंदे ने भी उसकी फिक्र की। हालेलुया। और खुदा की बरकतें उसके घर में आना शुरू हो गई। फिर वो कंगाल ना रही बल्कि अमीर रही। हालेलुया। आज भी जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं तो खुदा हमारे लिए। हालेलुया। वो कहता अपना बोझ मुझ पर डाल, मुझे तेरी फिक्र है। हम खुद अपना बोझ उठा नहीं सकते, हम अपना बोझ अपने खुदा पर डालें और कहें कि खुदा तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत है, और खुदा करता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कितनी फिक्र की कि अपने शोहर से कहकर उसके लिए एक कोठरी बनाई, जिसको मकान कह लो, कमरा कह लो, वो बनाया, और फिर उसके अंदर सारी जरूरियात की चीजें रखी। आज तो पास्टर अगर किसी चीज के लिए कह भी देता है चर्च के लिए तो क्या होता है, मर्जी से सुनी जाती है। तो खुदा के बंदे ने तो करना ही होता है। तो ये भी हम देखते हैं यहाँ पर ये खुदा के बंदे की जब उसने फिक्र की तो खुदा ने भी उसकी फिक्र की। उसके वसीला से खुदा ने उसे औलाद जैसी बरकत दी, और जब बेटा दिया तो जब मौसम बहार में आया तो फिर उसकी गोद में बेटा दिया। हालेलुया। जब फिर आया उसके पास
तो देखते हैं कि जब वो वहीं पर ठहरा हुआ था दूसरे जगह पर, तो उसके बेटा जो है उसके पेट में जन्म हुई तो वो मर गया। जब मर गया तो फिर हम आगे उस बेटी का ईमान देखते हैं खुदा की बंदी का, कि जब वो मर जाता है तो उसने अपने शोहर को भी नहीं बताया। जो कमरा उसके लिए बनाया हुआ था उसमें उसको लटा दिया और फौरी तौर पर उसको पता चला कि फलानी जगह पर खुदा का बंदा ठहरा हुआ है, तो वो अपने घोड़े के जिसके ऊपर भी उसने सवारी की वो चली गई। और जब उसके शागिर्द ने दूर से देखा तो उसे अपने खुदा के खादम को कहा, खुदा के बंदे को, कि वो शनीम की औरत आ रही है, शनीमी औरत आ रही है वहाँ। तो उसने कहा कि जा पूछ क्या काम है। उसने उसके शागिर्द को कहा कि मैंने तेरे साथ बात नहीं करनी, मैंने अपने खादम को मिलना है, मैंने तेरे आका को मिलना है, मैंने उससे बात करनी। तो जब वो फिर ऐसे मतलब उसने कहा कि मैंने उसको मिलना है, फिर वो चला गया। फिर उसने कहा आने दो। फिर जब वो चलेगी उसके पास तो उसके कदमों पर गिर गई। कहती है कि जब लेना था तो मुझे देना ही नहीं, जब खुदा ने मुझे दिया तो लिया क्यों, मुझे देना ही नहीं। चल मेरे साथ। उसका ईमान देखें, उसने अपने शोहर को भी नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मेरा बच्चा मर गया। सिर्फ उसका ईमान था खुदा पर कि मेरा खुदा का बंदा आएगा तो वो ये जिंदा कर देगा। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ कि उसने कोठरी में डालकर बंद करके दरवाजा चली गई, और जब खुदा का बंदा आया तो उसी कमरे में वो जाकर उसी बच्चे के ऊपर कलाम में आगे लिखा हुआ कि उसके ऊपर लेट गया, पसर गया और उसको आस्ता सांस आनी शुरू हो गई। तो जब वो ठीक हुआ तो बाहर जब निकला, उसने कहा कि बच्चा ठीक हो गया, जिंदा हो गया। तो उसने सबसे पहले अपने खुदा के आगे सजदा किया, खुदा के बंदे के कदमों पर गिर गई। उसने बच्चे को नहीं पहले देखा, पहले खुदा को सजदा किया। आज की जैसी औरत है, वो सबसे पहले बच्चे को उसने अपनी बगल में लेना, शुक्र है बच्चा मेरा जिंदा हो गया। हम देखते हैं कि उसका इतना ईमान था कि वो जब उसने ईमान के साथ लिया और ईमान के साथ ही उसने जिंदा भी लिया। हालेलुया। आज हम क्या है, अपने ईमानों को मजबूत नहीं रखते, अपने ईमान कमजोर कर देते, कहते हैं पता नहीं सुनी जाएगी कि नहीं सुनी। लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वो देता है, वो देता है। जब उसने दिया है तो उसका ईमान था कि तू ही जिंदा करेगा, तो उसने जिंदा किया। हालेलुया। और ये बहुत बड़ी आगे अगर हवाला पढ़े तो बहुत बातें हैं, तो पढ़ना चाहे तो घर जाकर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईमान के बारे में कि कितना उसका खुदा की बंदी का ईमान था, कि खुदा के बंदे से उसने खुदा समझते हुए उसकी खिदमत की, और खुदा ने उसको औलाद दी। और जब औलाद मर भी गई फिर भी उसने उसके ऊपर ईमान रखा कि यही जिंदा कर सकता है जिसने दिया है। तो खुदा ने अपने बंदा की दुआ को भी सुना, लिखा की दुआ को उसने उस मुर्दे बच्चे को भी जिंदा कर दिया। और आज भी वही खुदा है, अगर हम ईमान के साथ मांगते हैं तो यकीनन खुदा देता है। हालेलुया। ईमान के साथ मांगते हैं तो खुदा देता है, क्योंकि उसकी कुदरत है, वो देता है। खुदा का शुक्र है। मैं अपनी अगर गवाही शुरू करूँ तो बहुत सी गवाही है। इस दफा भी खुदा का शुक्र है कि मेरे बड़े बेटे को खुदा ने बेटा दिया, और वो मैंने मांग के लिया। मैंने बोला इस दफा मैंने चरनी में अपने बेटे को डालना है। आमीन। हालेलुया। तो खुदा ने मुझे मेरा पोता दे दिया। तो हम सब, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि खुदा से मांगे तो यकीनन खुदा दे। वो कहता मांग के देख मैं कैसा मेहरबान बाप है, और कहते मैं तुम्हारा जरा जरा मतलब भी जो है वो पूरा करूंगा। हालेलुया। तो यकीनन करता है। और मैं सबको यही कहती थी, मैंने बोला इस दफा कोई छोटा बच्चा हमारी कलीसिया में नहीं है, तो सबके बच्चे मैंने डाले हैं अपने चर्च की टैबलों में, चरनी में। तो इस दफा खुदा मुझे चाहिए कि मैं अपना पोता डालूं। तो यकीनन खुदा ने मेरी सुन ली है। आज मेरा पोता जो 5 दिन का है, खुदा उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हम खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो मैं काम करता है तो उसका प्रचार दो, उसको क्या है बयान करो कि खुदावन ने हमारे साथ ये काम किया। हम उसकी गवाही दे कि खुदावन सब कुछ करने की कुदरत है। हालेलुया।
ईमान के साथ, जब हम ईमान के साथ मांगते हैं तो खुदा देता है। और मैंने बोला मतलब मेरा बेटा तो रात दिन इतने साल हो गया, 30-35 साल, तो वो चर्च में काम कर रहा है, तो मैंने उसका बेटा नहीं डाला, तो मैंने बोला खुदा बेटा दे दे, आमीन। सब खुदा पर ऐसा ईमान रखें, शक ना करें, मैं खुदा ने ये काम करना है। जैसे वो हमारा बाप है, हम अपने बाप से भी तो लड़के चीजें लेते हैं ना, कि बाप हमें ये चाहिए, माँ हमें ये चाहिए, तो वो हमें जहाँ से कहीं भी मौजूद करते हैं, हमें देते हैं, हमारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। इसी तरह वो कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना पसंद करते हो, तो मैं तो तुम्हारा हकीकी बाप हूँ। तो मैं कह सब अपनी कलीसिया को भी ये कहते हैं कि आप लड़के मांग सकते हैं खुदा से, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। अगर तुम उसके बेटियां बेटे हो, अगर ऊपर से हालेलुया, जब हम खुदावंद के बेटे बेटियां होंगे तो हम अपने बाप से लड़के अपनी बात मनवा सकते हैं। ऐसा ही है, बाप जैसा भी उसके पास नहीं किया, उसने फिर भी अपने बेटे की बच्चे की ख्वाहिश पूरी करनी है। तो इसलिए हमारा खुदा कहता है कि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना पसंद करते हो, तो मैं तो तुम्हारा हकीकी बाप हूं। तो जब हम हकीकी बाप से मांगते हैं तो यकीनन वो भी देता है। हालेलुया, मैं खुदा का ढेरों शुक्र करती हूँ सारी दी हुई नेमतों बरकतों के लिए कि खुदा अपने बेटे बेटियों को देता है। वो कहता है मांग के दे, ये तो कुछ भी नहीं चीजें, मैं तो तुम्हें कौमें देता हूँ। हालेलुया, तो खुदा आज के कलाम पर हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।